सो हेलो एवरीवन एंड गाइस वेलकम टू द चैनल। सो गाइस यू माइट बी वंडरिंग कि सर आप लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो फेज़ 2 की कट ऑफ बताने में, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी बता भी चुके हैं। एंड गाइस यू माइट बी वंडरिंग, एक डायलॉग आता है ना कि यार बहुत देर करती मेहरमा आते आते, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा देर करती है सर इस पर। सो गाइस द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज वी डू नॉट वांट टू हैफिजेटली टेक के यार एक एक्सपेक्टेड नंबर मैं आपको बता दूं, बिकॉज वी वर वेटिंग कि एक बार हमारे पास एग्जैक्ट पेपर आ जाए, बिकॉज दिस ईयर पेपर इज I would say it's a little bit out of line, ठीक है, it's a difficult paper, I must say. And the second thing is कि पेपर में काफ़ी चीज़ें कुछ अनएक्सपेक्टेड लेवल पे आई हैं जो कि हमें इस बार देखने को मिली हैं, which is the reason we thought कि let's have a full paper with us, ठीक है, we can have a discussion with more students so that we can decide what can be a expected cutoff for this year. Again I'm telling you guys this thing, this does not mean that today whatever the thing that I will be saying you ये एक फाइनल कट ऑफ होगा, तो ये नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है जो हो सकता है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स आई हैव टॉक्ड अबाउट, बेस्ड ऑन द पेपर, जब हमने पूरा पेपर देखा, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस। सो दैट्स वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग अबाउट दी this year's expected cutoff of phase 2 examination. Now guys, here how we are going to discuss about that thing, because if I talk about prediction of cutoff, it's not an easy thing, because बहुत चीजें मैटर करती हैं यार, कि वैकेंसीज कितनी थी, व्हाट वाज द लेवल ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट लेवल, किसी को पेपर आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है, वो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर। देन वी विल हैव अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कट ऑफ ऑल्सो, बिकॉज कट ऑफ टोटली टेल्स अस कि क्या एक ट्रेंड पैटर्न फॉलो हो रहा है और वो इस साल क्या हो सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। सो विल trying to focus or we'll try to discuss about these three things, based on which we will discuss about this cutoff also. And along with that guys, I would request you guys also to let me know in the comment section, in your opinion, what would be the cutoff for this year. Okay, so let's begin here with the first thing. But before that guys, I would request you to download the guidebook, which is completely free of cost, जहाँ पे आपको PYQs मिल जाएंगे, ठीक है, you will get a decoded syllabus for the phase 1 topics, ठीक है, where there is no syllabus defined in the examination, you will get that thing also. And again, you along with that you will get a strategy with which you can start the preparation for your NAPART graded 2026 examination. So let's begin with my first question, that is, or the first thing that we need to analyze here is number of vacancies, because we always generally go with the trend that if the vacancies are decreasing, then the cutoffs generally go on a very higher side. So is that a sort of trend that we are witnessing here? Is this something that we've seen in this examination? We'll try to see this thing. But first of all, let's look at the number of vacancies, how the vacancies have come in the previous 2 years. So let's talk about 2023. It was around 77 vacancies that was on the general discipline, okay, out of which 31 were for the unreserved category. So guys, here when I talk about this cutoff, so I will be talking basically about the unreserved category है। उस हिसाब से अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हो तो आप उस हिसाब से एक आइडिया वहां पे लगा लेना, ठीक है। अब 2023 में थी हमारे पास 77 वैकेंसीज, 2024 में वैकेंसीज गिरी, it came to 50 here, where the unreserved vacancies were 23. Then in 2025 it again dipped down, it came down to 48, where now unreserved vacancies this year was 20 number, which says that the number of vacancies from the past 2 years are being consistently decreasing. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो नंबर ऑफ वैकेंसीज का है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज ये बहुत बार एक कॉमनली जब भी मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था कि सर वैकेंसीज ना कम हुई हैं, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट एक्चुअली द इम्पैक्ट वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर ऑल्सो, बिकॉज वैकेंसीज तो कम हुई है, तो इसका मतलब वैकेंसीज का इम्पैक्ट क्या वो देखते हैं। दैट इज फ्रॉम द कट ऑफ 2023 एंड 2024। इफ आई गो विद द कट ऑफ 2023, it was 128.5 for the general category in the unreserved category. Okay, and if I talk about the paper wise cutoffs here, so it was 53.25 that got into the paper 1 descriptive paper, paper 2 it was 22.5, and paper 2 descriptive paper it was around 31 marks. Now let's look at the cutoff of 2024. तो 2024 में क्या हुआ? अब देखो, पहली चीज जो देखने वाली है कि अगर आप ओवरऑल पेपर को देखोगे, इट वाज 128.5 द ओवरऑल कट ऑफ फॉर द फेज 2 मेंस, so that you can go to the interview. It dipped down to 126.75. But on the contrary, if we talk about the discipline wise cutoff here, so it was 53.25 for paper 2, it increased to 54 here. It was 22.5, it remains same at 22 point, it's 22.25 here. And then for
Descriptive, it again remained that it again got increased by 1 marks, that is 32 marks here. So if you look at the paper of 2024, that was also not an easy paper if I say guys. 23 से 24 का पेपर भी काफी मुश्किल आया था और 24 से 25 का पेपर भी काफी मुश्किल आया है. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. अब हम देखते हैं, जो हमने एक चीज नोटिस की है कि ओवरऑल कट ऑफ डिप हुई. Not the sectional, in terms of sectional cutoffs, if I talk about here, it has enhanced minutely, very minutely it has enhanced here. But if I talk about the overall cutoff, it has reduced. Now, if I talk about the overall final cutoff, including the interview here, the selection list cutoff, if I talk about here, for the general category, it was around 168 in 2024. In 2023, it was around 172.75. Now, the trend that we are witnessing here is that the sectional cutoff got a little bit enhancement there. But if we go with the overall final cutoff, there we have seen a declining trend here. क्योंकि पेपर मुश्किल था. ठीक है, हमने यहां पे भी देखा पेपर मुश्किल है, यहां पे भी देखा पेपर मुश्किल है. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम डिस्कस करते हैं कि फेज 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की. यू हैव सीन दैट जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव है, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है. ठीक है जी. अगर ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो कट ऑफ क्या चल रहा है जी, 22.25 and it was 22.5. Now this year's objective paper was really difficult. But if we consider out of 50 marks, क्या 22 मार्क्स लेने भी बहुत मुश्किल थे. अगर उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं तो देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वर अ लिटिल बिट ऑन एन इजी टू मॉडरेट लाइन आल्सो. फॉर एग्जांपल एनआरएलएम क्वेश्चंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हिच फंड की बात कर रहा है, रिवॉल्विंग फंड वाला क्वेश्चन आसान था. ठीक है. फिर कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे और जिसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कुछ क्वेश्चंस आसान थे. जहां पे उज्ज्वला स्कीम के बारे में पूछा तो वो थोड़ा सा बच्चों ने बोला कि दे वर सेइंग कि सर दैट वी वर एबल टू डू. बट कंसीडरिंग दैट आल्सो, इफ वी टॉक अबाउट हियर आल्सो, बिकॉज 22.5 22.25, तो इसका मतलब अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ है कितना जा सकता है. आई थिंक इट वुड बी 22 प्लस माइनस 2 हियर. इसी की रेंज में ही रहेगा. वी कैन नॉट से कि ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ बहुत बढ़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट है काफी ज्यादा. तो इसीलिए मुझे लग रहा है हो सकता है पॉइंट वी कैन सी कि थोड़ा सा कम हो जाए. डिस्क्रिप्टिव की बात करें, ऑन द कॉन्ट्री डिस्क्रिप्टिव पेपर वाज दैट ईयर ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, बिकॉज इफ आई टॉक फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड तो एग्रीकल्चर के काफी क्वेश्चन ऐसे जो आप लिख सकते थे. और अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो डिस्क्रिप्टिव वाज समथिंग वेयर द स्टूडेंट्स वर फीलिंग अ little bit comfortable if we compare to objective. I'm not saying the paper of descriptive was easy. No. It again, because guys मैं यहाँ पे बोल दूं कि नहीं यार पेपर में क्वेश्चंस लेंदी थे तो टाइम लगा था, मुश्किल था पेपर. तो डिस्क्रिप्टिव ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बच्चे को ऐसा लग रहा था कि सर वो शायद डुएबल है. तो अगर हम ट्रेंड के हिसाब से 31 था, 32 था, तो मुझे भी लग रहा है कि जो कट ऑफ हो सकता है वो 32 के आसपास ही रहेगा. वी कैन अगेन से 32 प्लस माइनस 2. Descriptive English is something guys where I have talked to Narveer sir also, I have talked to students also, there they were saying कि descriptive English थोड़ा सा doable था सर. तो यहाँ पे 53.25 था, 54 था. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप अराउंड 55 प्लस माइनस 2 यहाँ पे ले सकते हैं. इफ वी गो हियर तो यहाँ पे अगर मैं लोअर रेंज था 20 30 प्लस 53, सो इट बिकम 103 मार्क्स. ठीक है जी. और अगर मैं हायर रेंज में लेता हूँ 24 34 एंड 57, तो ये बन जाता है 115 मार्क्स के हिसाब से, अराउंड 115 मार्क्स के हिसाब आसपास बन जाता है अगर हम हायर रेंज पे लेते हैं. तो ये तो हो सकता है कि इतने मार्क्स आपके आए. बट अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, सो इट इज नॉट सफिशिएंट. जस्ट स्कोरिंग दिस मार्क्स इज नॉट सफिशिएंट. आपको कितना स्कोर करना चाहिए? Here comes the main thing, because if you go here it was 128.5, it was 126.75 और इस बार का पेपर भी मुश्किल है. तो ओवरऑल हम जो अगर बोलें तो हम कह सकते हैं इट कुड बी इन द रेंज ऑफ 123 प्लस माइनस 2. इसके आसपास हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कट ऑफ देखने को मिल सकता है. बिकॉज आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार यहाँ पे 126 था तो 120 तक चल जाएगा, इतना ज्यादा डिप नहीं होगा. बिकॉज स्टिल द स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आप वैकेंसी देखो तो इतना डिप नहीं होगा. तो दिस इज वेयर अ कट ऑफ माइट लाई. यू ऑल्सो टेल मी. और अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें कि आपको इंटरव्यूज में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वी वुड से बस यहाँ पे 172.75 था, 168 था. तो ओवरऑल कट ऑफ अगर हम बात करें तो इट माइट बी इन द रेंज ऑफ
165 प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 आप यहाँ पे कह सकते हैं। दैट इज वेयर योर ओवरऑल कट ऑफ विल आए। तो इसका मतलब आपको इंटरव्यूज में काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जाते तो यू विल हैव टू स्कोर अराउंड 35 to 40 मार्क्स इन द इंटरव्यू टू परफॉर्म बेटर हियर। So this is what our analysis say with the students that we have talked about here. Okay, so I would not say कि कट ऑफ मतलब जो मेरे बच्चों से बात हुई है तो पेपर उसी लेवल का हो सकता है, उसके आसपास ही कट ऑफ हो सकता है थोड़ा सा डिप कर जाए। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ भी, क्योंकि जो ट्रेंड बोल रहा है कि पेपर मुश्किल है तो कट ऑफ भी डिप हुआ है। सो दैट इज अगेन समथिंग दैट वी हैव टू कंसीडर हियर, दैट माइट बी द थिंग हियर। एंड दिस इज व्हाट our analysis say with regards to the NABARD grade A fees to expected cutoff, or if I talk about the overall expected cutoff here. So do let us know your cutoff also. Okay, so I wish you all the best for the examination, guys. Keep working hard, keep preparing hard. And again, before I end this video, again guys, I'm not saying this is the final range, because I'm not saying कि हम लोग बहुत अच्छे हैं कि यही होगा, बट एक जो बच्चों से बात के जो पेपर देख के लग रहा है वो लग रहा है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे डिप देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, सो डू लेट मी नो योर आइडिया ऑल्सो। चलो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट जी, बाय।